Everyone, this is Infrastructure in India, Part 3. In the previous lectures, we have already discussed about what is infrastructure and what is the state of infrastructure in India. Infrastructure refers to the supporting structure of an economy that helps an economy directly as well as indirectly to grow. The elements that help an economy directly to grow come under the category of economic infrastructure, while the elements that help an economy indirectly to grow come under the uh, social infrastructure or come under the elements of social infrastructure. Next, we discussed about the state of infrastructure in India. Dear students, in the previous video, that is the state of infrastructure in India, we discussed about energy and the types of energy. Dear students, this topic has been deleted from the syllabus, but how much of the syllabus, how much of the topic has deleted, we are not very much aware about the fact. So that's why I have completed the topic. क्योंकि CBSE ने इसको कट ज़रूर किया है, लेकिन इसके कितने पोर्शन को कट किया है ये अभी हमें क्लियर नहीं हो रहा, ये बाद में हमें पता लगेगा, इसलिए मैंने इस टॉपिक को कवर किया है. और सबसे बड़ी बात, दिस इज़ नॉट अ वेरी डिफ़िकल्ट टॉपिक एट ऑल. और नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमें इन टॉपिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए मैंने टॉपिक आपका ये कवर किया था. आज भी मैं कुछ टॉपिक एनर्जी में से ही कवर करूँगी. इट मे नॉट बी अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, क्योंकि अभी हमें इसके बारे में क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन क्योंकि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको ज़रूर स्टडी करेंगे. क्लियर बेटा? नाउ दिस इज़ अबाउट पैटर्न ऑफ एनर्जी कंजम्पशन इन इंडिया. The percentage use of different sources of energy is referred to as pattern of energy consumption. You must be aware about the definition. बेटा मैं इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगी, क्योंकि ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं भी है. अभी तक जो हमें इन्फॉर्मेशन है ये आपके सिलेबस में नहीं इंक्लूड हो रहा, लेकिन बाय चांस अगर इसमें से कुछ क्वेश्चन आए तो आपको हैंडल करना आसान हो जाए. एक हमारे साथ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक इशू क्या रहता है कि पूरी इंडियन इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी क्वेश्चंस यहाँ फ्रेम होते हैं. मतलब किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन किसी दूसरे के साथ एज अ वैल्यू बेस्ड, एज एन एप्लीकेशन और अंडरस्टैंडिंग बेस पर पूछा जा सकता है. दैट्स वाई आई एम taking all the concepts in order to make you capable, in order to enable you to handle the multidisciplinary as well as the value based questions. So we were discussing about what is pattern of energy. The percentage use of different sources of energy is referred to as pattern of energy consumption. It can only be analyzed when different sources of energy are converted into a common unit. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोल सॉलिड फॉर्म में होता है, पेट्रोलियम लिक्विड फॉर्म में होता है और नेचुरल गैस गैसियस फॉर्म में होता है. और हम इन सबको जब कंपेयर करने जा रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम इसको एक कॉमन यूनिट दें, और इसके लिए टर्म हम यूज़ करते हैं MTOE. दिस इज़ मिलियन टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट in India. The pattern of energy consumption has undergone considerable change over time. The use of primary sources like coal, petroleum and natural gas has undergone a significant change. बहुत ज़्यादा चेंज इसमें आया है. तीनों हमने पढ़ा है, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस. ये हमारे कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, जिनको हम बहुत पहले से यूज़ कर रहे हैं. अब इनके यूज़ में, इनके पैटर्न में काफ़ी ज़्यादा चेंज आया है. Final consumption of coal has drastically reduced irrespective of the increase in the total consumption of coal. Final consumption of coal means हम इसको कमर्शियल पर्पसेस, हम इसको नॉन कमर्शियल, आप कह सकते हो कि डोमेस्टिक पर्पसेस में हम इसको कम यूज़ कर रहे हैं. Its consumption increased from 95 million tons in 1980-81 to 355 million tons in 2008-9. Also, the consumption of oil, for which our country was dependent upon Gulf countries, has increased. The consumption of electricity in the agricultural sector has increased. Again, this is very, very important concept. Electricity. The consumption of electricity
in agriculture sector has increased over time. This is because of modernization of agriculture, as we have already studied that because of green revolution, because of the policy of green revolution, modern equipments or modernized agriculture, modernized farming is continuously improving in India. The result is more use of electricity or more electrification of farms. So it remained the highest in the industrial sector as compared to other sectors. सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इंडस्ट्रीज़ में होती है, उसके बाद ये डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए होता है, फिर ट्रांसपोर्टेशन में होता है, फिर एग्रीकल्चर में होता है. अभी भी इट इज़ लोएस्ट इन एग्रीकल्चर सेक्टर, लेकिन धीरे धीरे एग्रीकल्चर सेक्टर में इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन पहले के कंपैरेटिवली बढ़ रहा है. ये एक हेल्दी साइन है, एक ग्रोथ प्रोसेस के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट साइन है, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर का डेवलप होना भी बहुत ज़रूरी है. एंड electrification of farms directly indicates the growth of our agriculture sector. Move to the next topic. This is about emerging challenges in power generation. बच्चे एनर्जी में हमें सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कस करना होता है, ये हमारे टॉपिक का पार्ट रहा है इलेक्ट्रिसिटी. हम यहीं पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे कि एनर्जी अगर डिलीट हुआ है तो क्या पावर सेक्टर भी इसमें से डिलीट हुआ है. अभी हमारे पास इसका कोई आंसर नहीं है, दैट्स वाई मैं आपको ये टॉपिक भी करा रही हूँ. दिस इज़ रिलेटेड विद इलेक्ट्रिसिटी और पावर जनरेशन. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द इमर्जिंग चैलेंजेस. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द policies or the remedial measures adopted by the government. The installed capacity of India to generate electricity is not sufficient enough to meet an annual economic growth of 7%. हमारे कंट्री में PLF फैक्टर, दिस इज़ प्लांट लोड फैक्टर, बहुत कम है. 60% तक हम इलेक्ट्रिसिटी अपनी यूज़ कर पा रहे हैं, बाकी 40% हमारी वेस्ट हो रही है. और हमारा जो ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन है वो डिमांड के कंपैरेटिवली बहुत कम है. द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स दैट डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रिसिटी सफर्ड अ ग्रेट लॉस ऑफ मोर देन ₹500 बिलियन ड्यू टू ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. हमारा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स, जितने भी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हैं, ज़्यादातर लॉसेस में है. क्यों? क्योंकि उनको बहुत नुकसान होता है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में. इलेक्ट्रिसिटी को प्राइमरी सोर्स से कलेक्ट करना और उसको फाइनल यूज़र तक पहुंचाने के प्रोसेस को हम ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं. और इस पूरे प्रोसेस में स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है. अब यहाँ पर थोड़ा सा हम और डिस्कस कर सकते हैं इसके बारे में. अनमीटर्ड सप्लाई हम इसमें वर्ड यूज़ करते हैं. क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी परचेज़ करते हैं स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स जो है वो प्राइमरी सोर्सेज से, मीन्स जहाँ ये प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वहाँ से स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स इसको परचेज़ करता है. और बीच में से वहाँ से परचेज़ होती है, बीच में से उसको चुरा लिया जाता है, मतलब थेफ्ट एंड स्टीलिंग. ये भी एक बहुत प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट है हमारा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स का. इसको हम अनमीटर्ड सप्लाई बोलते हैं. वो बीच में से ही कहीं कंज्यूम हो जाती है और मीटर तक नहीं पहुंचती, मतलब उसका रिकॉर्ड नहीं आता. ये भी एक बहुत मेजर इशू है हमारा किस चीज़ का, लॉसेस का. मतलब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स का ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम T&D लॉसेस बोलते हैं, इसका एक रीज़न तो क्या है, हमारी टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइज नहीं है इसलिए वेस्टेज हो जाती है. दूसरी बात, स्टीलिंग और थेफ्ट भी इसका एक मेजर इशू है. The wrong pricing of electricity, like supply of electricity at subsidized rates to agriculture sector and theft of electricity has increased the problem of power sector. अब फिर से देखिए, कुछ ऐसे एरियाज़ हैं, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को सब्सिडाइज रेट पर भी प्रोवाइड किया जाता है. अगर हम पंजाब के बारे में बात करें तो पंजाब में एग्रीकल्चर सेक्टर में फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है. हमारे अपने स्टेट में भी एग्रीकल्चर के लिए सब्सिडाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है. अब इसको बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया जाता है. आपने अपने इनिशियल चैप्टर्स में डिस्कस किया था कि जो सब्सिडीज़, जब भी हम किसी चीज़ पर सब्सिडी देते हैं
तो उसका एक्सेसिव यूज़ होना शुरू हो जाता है, वेस्टेज शुरू हो जाती है, मिसयूज शुरू हो जाता है। अब सेम प्रोसेस कहाँ हो रहा है? एग्रीकल्चर सेक्टर में पंजाब में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है वो गेन तो की जाती है ऑन द नेम ऑफ एग्रीकल्चर, लेकिन उसको बाकी पर्पसेस के लिए भी यूज़ किया जा रहा है। ये एक वेस्टेज की फॉर्म में आ रहा है, महंगा खरीदा जा रहा है और उसको सस्ता बेचना पड़ रहा है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स को। ये भी उसके लॉसेस का एक रीज़न है। The high power tariffs and prolonged power cuts is another challenge in the power sector. This is because of the fact that production of electricity is less as compared to its demand. It is heavily because of the reason, it is mainly because of the reason that for electricity production, India is still dependent on conventional sources of energy. More than 70% of electricity is generated in thermal power plant, which are traditional because they are based on द यूज़ ऑफ कोल। तो ये भी एक रीज़न है, जबकि हमें बाकी चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, एटॉमिक पावर, देन विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायो एनर्जी, ये सारे अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में हैं और इनको हम प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। देन द थर्मल पावर स्टेशन फेसेस द स्कार्सिटी ऑफ द रॉ मटेरियल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। हमने इस पॉइंट के बारे में भी डिस्कस किया था कि जो कोल इंडिया में मिल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि कोल रिजर्व्स इंडिया में अबंडेंट हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन जो कोल इंडिया में मिल रहा है हमें, दैट इज़ नॉट ऑफ गुड क्वालिटी। हमें उससे ऐश ज़्यादा मिलता है, हीट कम मिलती है, तो वो हमारे थर्मल पावर प्लांट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा सुटेबल नहीं है। सो दिस इज़ अगेन अ बिग चैलेंज फॉर पावर जनरेशन इन इंडिया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट the remedial measures. First is privatization in power sector. Whenever we privatize an institution or a firm or a company, it is capable to manage its losses. वो profit running होती है, उनका मोटिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना होता है, तो धीरे धीरे उससे क्या होता है कि वहाँ लॉस बेयरिंग की बजाय वो प्रॉफिट रनिंग में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। देन प्राइवेटाइजेशन इन पावर ट्रांसमिशन। हमने पहला पॉइंट किया, पावर जनरेशन को भी हम प्राइवेट हैंड्स में दें। जैसे अगर आपको याद होगा तो यहाँ खेदड़ के पास बरवाला रोड पर खेदड़ के पास पावर प्लांट है, रिलायंस ने जो शुरू किया हुआ अपना। तो इसी तरह से प्राइवेटाइज उसको जनरेशन को भी किया जा रहा है, फिर ट्रांसमिशन को भी किया जा रहा है। देन पावर फॉर ऑल बाय 2012। यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा मैं डिस्कस करूँगी। अगर आपके पास NCERT की न्यू बुक्स हैं तो यू शुड यूज़ द डाटा गिवन इन योर न्यू NCERT बुक्स। मेरे पास नई NCERT की बुक नहीं है, इसलिए मैं नेट से डाटा कलेक्ट करती हूँ, तो उस नेट पर मुझे कई बार बिल्कुल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। सो अगर आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपकी अपनी NCERT की बुक में से मिल रही है तो प्लीज़ आप उसी को फॉलो करिए। Power for All by 2012, the Ministry of Power has set up an objective of Power for All by 2012 to achieve the target of 1000 kilowatt per hour. This is the unit of electricity of per capita consumption of electricity in India. This objective is aligned with the objective to achieve an economic growth of 8% per annum. अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि जो इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, दिस इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द नीड टू हैंडल 7% ग्रोथ रेट। तो इससे क्या किया गया, प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है ताकि हम उसको मैच कर सकें अपनी इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। देन सेटिंग अप रेगुलेटरी मैकेनिज्म। The Central Electricity Regulatory Commission, along with state electricity regulatory commissions, has been established in 19 states under the Electricity Regulatory Commissions Act 1998. These commissions and authorities regulate tariff, promote efficiency and competition. बच्चे अगर इसको संभाल के रखिए, अगर आपका ये टॉपिक डिलीट नहीं होता है तब हम इसको और ज़्यादा अच्छे से लर्न करेंगे। अभी सिर्फ इसको अंडरस्टैंड करिए। देन इंकरेजिंग FDI।
हमारे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और ट्रांसमिशन का एक बहुत बड़ा रीज़न क्या है? पुअर टेक्नोलॉजी मीन्स एडवांसमेंट नहीं है हमारी टेक्नोलॉजी में. दिस इज़ बिकॉज ऑफ द फैक्ट that there is lack of capital. So in order to bring efficiency, in order to bring more use of technology, FDI has encouraged in electricity sector also. Then accelerated power development and reform programs. APDRP has been initiated in the year 2000-2001 with the motive of improving financial viability, reducing transmission and distribution losses, and promoting transparency through computerization. Means ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाया जा रहा है इसको. फाइनेंशियल वायबिलिटी का मतलब होता है लीस्ट कॉस्ट पर प्रोड्यूस करना, कॉस्ट ऑफ जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को कम किया जाए. देन अवेयरनेस. द गवर्नमेंट इज encouraging people to increase the use of renewable resources and also creating awareness among the people to reduce the conventional resources. During the 8th 5-year plan, government has set up National Energy Efficiency Program NEEP that aimed at conservation of petroleum products. Then improving productivity. The Indian government has been emphasizing on the measures to improve the productivity of the existing power generating industries. So these are the remedial measures that have been taken by government to cope up to handle the challenges of power supply in India. Next topic, this is about health infrastructure. बेटा दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इस बार इसमें से एक पूरा 6 नंबर का क्वेश्चन आया था. आज हम उस क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करेंगे, हम उस क्वेश्चन को अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. नाउ health a key component of social infrastructure. Health is not only mere absence of disease but also includes the state of complete physical, mental and social well-being of an individual. Keep in your mind, हेल्थ का मतलब सिर्फ फिज़िकल फिटनेस नहीं होती. हेल्थ का मतलब होता है स्टेट ऑफ कंप्लीट फिटनेस. इट इंक्लूड्स द मेंटल फिटनेस ऑल्सो. डियर स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग लॉकडाउन बहुत सारी अलग अलग इंसिडेंट्स होते रहे. उनमें एक इंसिडेंट था सुशांत सिंह का, जो उसे सुसाइड किया था. ये एक बड़ा पेनफुल इंसिडेंट रहा हम सब के लिए. इसका एक जो डिस्कस मैं करना चाह रही थी वो ये कि वो मेंटल वेलबींग में नहीं था. ही वॉज नॉट अ हेल्दी पर्सन. हेल्थ का मतलब ही क्या होता है? दिस इज़ रिलेटेड विद द नॉट ओनली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़ बट इट मीन्स द कंप्लीट वेलबींग. हम लोगों को ये बात हमेशा सोचनी चाहिए कि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती जिसका सॉल्यूशन नहीं होता. और यही है वेलबींग, यही है फिटनेस. तो हमेशा ध्यान रखिए कि अगर कभी भी आपको कोई बात स्ट्रेस दे रही हो या कोई प्रॉब्लम आपको आए तो उसको किसी से डिस्कस कर लीजिए, उसको लेट आउट करिए. जितनी जल्दी आप बात को किसी से शेयर करोगे उतना ही आपके लिए लेट गो करना भी आसान होगा, उतना ही उसको हैंडल करना भी आसान होगा. सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को फिज़िकली फिटनेस के साथ साथ मेंटली स्ट्रॉन्ग भी बनाने की कोशिश करिए. ये है इस टॉपिक का मतलब. सो अपने दिमाग में से ये सुसाइड वर्ड को निकाल दीजिए. एवरी प्रॉब्लम हैज़ मल्टीपल सॉल्यूशंस. जस्ट बी काम, लुक फॉर द सॉल्यूशन. डेफिनेटली यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मेनी ऑफ द सॉल्यूशंस. बहुत सारे आपको मिल जाएंगे. सो बहुत ज़रूरी है बच्चे कि अपने स्ट्रेस लेवल को, मेंटल प्रॉब्लम को आप दूसरों से शेयर करिए और उसका सॉल्यूशन ढूंढिए. क्लियर बेटा? नाउ, a person's ability to work depends on his health. A healthy person can contribute more actively. Hence, health and development of a person are the integral part of a nation's social and economic development. It is very difficult to assess public health in terms of the single set of measures, so various other indicators have been taken into account like infant mortality rate, maternal mortality rate,
life expectancy and nutrition level along with the communicable and non-communicable disease. The various health indicators in India have been tabulated in the table below. We will discuss about the health indicators. इंडिया में जब हम हेल्थ फैसिलिटीज़ के बारे में बात करेंगे या डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ केयर के बारे में बात करें तो कुछ पॉइंट्स हम इसमें लेकर चलेंगे. The very first, we are going to discuss about the development of health services after independence. First is decline in death rate from 27 per thousand in 1950. Sorry, बच्चे, it is 278 per thousand in 1952, 26 per thousand in 2018. Then reduction in infant mortality rate. Infant mortality rate is the rate of death of infants up to 1 year of age. It has significantly reduced from 146 per thousand in 1951 to 30 per thousand in 2018. Next, rise in expectancy rate. Expectancy of life refers to the expected lifespan of people. It has significantly risen from 32 years in 1951 to 69 years in 2018. Then decline in under 5 mortality rate. बच्चे अंडर 5 mortality rate का मतलब होता है कि जो बच्चे हैं वो 5 साल की उम्र पूरी करने से पहले पहले कितने बच्चे पर 1000 मर जाते हैं. दिस इज infant under 5 mortality rate. It has significantly reduced from 248 per thousand in 1960 to 45 per thousand in 2018. Then control over deadly disease like malaria, tuberculosis, cholera and smallpox. Now we have a table which is table को ध्यान से study करना, आपको काफ़ी कुछ information इसमें से मिलेगी. Next, this is about the healthcare system in India. India has 3-tier healthcare system. Very very important topic. इसमें हम डिस्कस करेंगे 3 टायर्स के बारे में. अलग अलग टायर्स के बारे में हम स्टडी करेंगे कि जो एक पिरामिड टाइप का सिस्टम है इंडिया में. टायर 1, टायर 2 एंड टायर 3. फर्स्ट वी हैव टायर 1. इन टायर 1 it includes PSC, that is primary health centers, CSC, this is community health centers and sub centers. Now PSC, this is primary health centers, CSC, this is community health centers. These are small hospitals set up mostly in small towns and rural areas and managed by a single doctor and ANM. This is auxiliary nursing midwife. मतलब बहुत कम लोग होते हैं यहाँ पर. इनका काम क्या होता है? These centers focus on educating people on issue relating to health care and provide immunization facilities against infectious disease. अगर किसी गांव में कॉलरा फैल गया या किसी गांव में लगातार टीबी केसेस बढ़ते जा रहे हैं या अभी जो कोविड-19 का आया था, चल रहा है अभी कोविड-19 का, तो लोगों को उसके बारे में अवेयर करना कि कैसे इन बीमारियों से बचा जा सकता है. अगर मलेरिया है तो लोगों को घर घर जाकर दवाइयाँ बांटी जाए. अगर टीबी है तो उससे टीबी की वैक्सीनेशन भी है, BCG का इंजेक्शन जो लगता है, तो बच्चों को वो इम्यूनाइज भी किया जाए, मतलब वैक्सीनेशन भी दिया जाए. सो ये इनके काम होते हैं. दीज सेंटर्स प्रोवाइड प्रीलिम ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स विद इन द मैनेजेबल लिमिट्स. अगर वो जितना वो कर सकते हैं उतनी हेल्प करते हैं पेशेंट्स की, लेकिन अगर बीमारी ज़्यादा बढ़ी है तो फिर इमीडिएट उसको क्या करते हैं बेटा, इमीडिएट उसको फिर आगे बाकी सेंटर्स में शिफ्ट कर देते हैं. नाउ सेकेंड इज टायर 2. दीज इंस्टीट्यूशंस आर अपग्रेडेड कंपेयर टू PSCs and have facilities for surgery, ECG and X-rays also. They are located in big towns and district headquarters. तो यहाँ से हमें एक पॉइंट मिल रहा है कि जो विलेजेस हैं, रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पर सिर्फ PSC और CSC होते हैं विद द फैसिलिटीज़ ऑफ प्रीलिम ट्रीटमेंट. जबकि टायर 2 ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ एक्सरेज हैं, सर्जरी की फैसिलिटीज़ भी हैं, ECG वगैरह भी हैं. तो ये सारी कहाँ पर हैं? अर्बन एरियाज़ में हैं. देन टायर 3, it includes tertiary health care centers, means modernized. These are high-end and fully equipped medical centers offering specialized medical facilities.
The tertiary sector also includes the educational and research centers such as AIMS. बच्चे you have to learn the full forms of AIMS, AIIMS. This is All India Institute of Medical Sciences, New Delhi. Then PGI, this is Postgraduate Institute like in Chandigarh. रोहतक में भी है, जगह जगह पर है ये. And NIMHNS, this is National Institute of Mental Health and Neurosciences, Bengaluru. So you have to learn the full forms of these abbreviations. Now, this is about private sector health infrastructure. Again, a very important point. The private sector accounts for more than 80% of total healthcare spending in India. अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो इतने साल हो गए हमें इंडिपेंडेंट हुए, उसके बावजूद भी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ उतनी डेवलप्ड नहीं हैं जितनी कि प्राइवेट सेक्टर में है. ये एक मेजर इशू है. दिस इज़ प्राइवेट सेक्टर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर. प्राइवेट सेक्टर में 80% प्राइवेट सेक्टर जो है वो 80% के अराउंड टोटल हेल्थ केयर स्पेंडिंग्स को दे रहा है हमें. अर्बन पीपल आर अवेलिंग मोर प्राइवेट नॉन इंस्टीट्यूशनल हेल्थ केयर सर्विसेज दैन रूरल पीपल. जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं ये अर्बन एरियाज़ में है तो आर जनरली एक्सेसिबल बाय द पीपल लिविंग इन अर्बन एरियाज़. प्राइवेट सेक्टर इन हेल्थ केयर हैज़ गेन्ड द डोमिनेंट प्रेजेंस इन ऑल द सब मार्केट्स. सभी तरह के ट्रीटमेंट्स भी हैं, सभी फील्ड्स हैं उसमें, लाइक मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. मेडिकल कॉलेजेस बहुत सारे प्राइवेट हैं. देन मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड डायग्नोस्टिक्स, जहाँ बीमारियों को डायग्नोज किया जाता है, जो लैब्स हैं. देन मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, जो मेडिसिन्स हैं या इक्विपमेंट्स हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं. तो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी इस टाइम चल रही है, मतलब सर्जरी भी अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है. एंड फाइनली मेडिकल केयर सर्विसेज. Presently, more than 90% of hospitals and more than 85% of doctors belong to private sector health infrastructure. Because of this efficient private sector health infrastructure, India has now developed as one of the major destination for medical tourism. अगर हम इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इंडिया मेडिकल हब बनता जा रहा है और बहुत सारे फॉरेनर्स इंडिया में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आते हैं. इट इज़ बिकॉज ऑफ द रीज़न दैट मेडिकल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इन इंडिया आर क्वाइट डेवलप्ड, बहुत टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड है, बहुत एफिशिएंट है, एंड दे आर quite cheaper as compared to other countries. That is the reason that India has developed as a favorite destination for medical treatment. Now, health as an emerging challenge. In recent years, India has embarked upon the development of vast health infrastructure. This is evident from the fall in the death rate, infant mortality rate, and rise in life expectancy, as we have discussed in the previous slides. But more need to be done in the field of healthcare. The following are some of the deficiencies in the Indian healthcare. Still, some problems, so many problems are there in in the area of health facilities. First is unequal distribution of healthcare services. The healthcare services are unequally distributed across rural and urban areas, as we have discussed in the previous slides. Rural areas that support 70% of the population has only 1/5 of the hospitals. Further, the doctor population ratio is as worse as 1:2000. मतलब 2000 पेशेंट्स के लिए इंडिया में एक ही डॉक्टर है. This implies that for every 2000 people, there is only one doctor in India. Only half of the dispensaries are set up in villages. Most of the healthcare facilities have been confined mostly to the urban areas. इस वजह से जो रूरल पीपल हैं उनके लिए हेल्थ फैसिलिटीज़ एक्सेसिबल नहीं है. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द रूरल पीपल टू गेट प्रॉपर मेडिकल केयर. Then communicable disease. Various communicable diseases like AIDS, HIV and SARS
have made their way to India, all these deadly diseases pose serious threat to the human capital reserve, thereby impeding इकोनॉमिक ग्रोथ. अभी जो कोविड आया, कोविड-19 पूरा वर्ल्ड एक तरफ हो गया और एक छोटे से वायरस से हम खुद को नहीं बचा पा रहे. ये भी हमारे पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़ का है. इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट हो गई है मेडिकल एरियाज़ में, लेकिन एक वायरस को हम नहीं हरा पाए. ये क्या है? ये एक ड्रॉबैक है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ का. देन पुअर मैनेजमेंट. The healthcare centers lack trained and skilled personnel in the rural areas. Therefore, rural people have to rush to the urban healthcare centers. This becomes worse in the absence of proper roads and other cost-effective means of transportation. Then, this is about the lack of modern techniques and facilities, as we have already studied that the government health centers are usually devoid of the basic facilities like blood testing, X-rays, etc. These centers lack modern techniques and medical facilities like CT scan, sonography, etc. In order to avail these services, people need to depend on the private hospitals that charges exorbitant fees. बहुत महंगे होते हैं. CT scan हो गया या सोनोग्राफी, ये काफ़ी महंगे हैं. 5000 तक पहुंच जाते हैं. कुछ टेस्ट इतने ज़्यादा महंगे हैं 21,000 के भी टेस्ट होते हैं, मतलब बहुत एक्सपेंसिव हैं. और ये सारे टेस्ट जो हैं ये हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नहीं है. दिस इज़ अगेन अ मेजर चैलेंज. देन प्राइवेटाइजेशन, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स लाइक 90% of the hospitals and 85% of the doctors belong to private sector. But private sector hospitals charge big amount for medical treatment. That's why it is not accessible for the poor people. तो यहाँ पर एक मेजर इशू क्या आता है? रिच पुअर डिवाइड. गरीब लोग नहीं इन सर्विसेज को अवेल कर पाते. तो अब गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी योजनाएं शुरू की हैं, जिसमें एक आयुष्मान योजना है. बच्चे इस योजना के बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे. दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. इस आयुष्मान भारत योजना के अंडर गरीब लोग जो हैं किसी भी हॉस्पिटल में जो इस आयुष्मान योजना को फॉलो कर रहा है, वैसे तो ऑलमोस्ट सभी हॉस्पिटल्स कर रहे हैं, तो जो भी आयुष्मान योजना जिसमें फॉलो की जा रही है वहाँ पर जाकर अपना ट्रीटमेंट करा सकता है. तो अगर आपसे कोई गरीब आदमी कभी भी इस तरह की हेल्प मांगने की कोशिश करे तो प्लीज़ आप उसके सबसे बड़ी हेल्प यही करोगे कि आप उस योजना के बारे में उसको बताइए ताकि वो इस योजना का बेनिफिट ले सके. और भी काफ़ी सारी इंश्योरेंस स्कीम है. हेल्थ इंश्योरेंस होता है, तो इसका भी जब हम कुछ सामान खरीदते हैं, जैसे कुछ सब्सिडाइज्ड सामान हम खरीदते हैं, तो साथ में हमें हेल्थ इंश्योरेंस भी मिल जाता है. सो प्लीज़ गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट दीज योजनास. दीज आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. बहुत अच्छा रहेगा हम इसके बारे में अवेयर हों ताकि हम दूसरों को इसके बारे में अवेयर कर सकें. मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है. सो ये आपके लिए बहुत अच्छा स्टेप रहेगा कि आप इन योजनाओं के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए. और कोई भी गरीब आदमी आपको मिलता है तो आप 100, 50 या 500 रुपये देने की बजाय आप उसको इन योजनाओं के बारे में बताइए ताकि वो पूरा बेनिफिट ले सके. नेक्स्ट, दिस इज़ अबाउट द women health, a great concern. Half of the total population in India constitute women. Women are lagging behind in education, healthcare and economic participation as compared to men. हम पढ़कर आए हैं ये कि वर्कफोर्स में फ़ीमेल का प्रोपोर्शन काफ़ी कम है. इसी तरह से अगर हम एजुकेशन के बारे में बात करें, एजुकेशन टू फीमेल इज स्टिल अ फार क्राई. सिमिलरली, women health is a big challenge in India. The child sex ratio has declined from 945 in 1991 to 927, showing the growing incidence of female feticide in the country. The married women population close to 3 lakh have already been given birth to one child. About 50% of the married women between the age of 15 and 49 suffer from anemia. Anemia or the shortage of HP. These resulted in this resulted in 19% of maternal deaths. Maternal death का मतलब होता है at the deaths at the time of delivering a baby. The major cause of maternal morbidity and mortality in India is abortions.
These factors point towards the women's health, due to which it has become a matter of great concern. बच्चे यहाँ पर एक वर्ड आया है मॉर्बिडिटी. मॉर्बिडिटी के बारे में भी हम दोबारा डिस्कस करेंगे. मॉर्बिडिटी का मतलब होता है टेंडेंसी टू फॉल इल. इंडिया में वल्नरेबल स्टेज है, हम बड़ी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं. इसके कुछ रीज़न है, जैसे एक तो हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा ख़राब है, और एक हमारे हैबिट्स जो हैं, ईटिंग हैबिट्स भी हमारी हेल्दी नहीं हैं. तो ये है मॉर्बिडिटी. मॉर्बिडिटी का मतलब होता है टेंडेंसी टू फॉल इल. और विमेन के केस में मॉर्बिडिटी बहुत ज़्यादा है. उसके रीज़न क्या है कि हम केयर ही नहीं करते. आप अपने घर में देखिए, आपकी मम्मा या आपके सिस्टर हैं, अगर वो बहुत बीमार भी होती हैं, उसके बावजूद भी वो घर का सारा काम करती हैं या मैनेज करती हैं. क्यों? क्योंकि वो अपनी बीमारी को साइड पे रख लेती हैं. अब यहाँ पर आपके लिए एक रहेगा कि प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर मदर्स, योर मदर, योर सिस्टर और अदर फीमेल मेंबर्स ऑफ़ योर फैमिली, क्योंकि वो आपको कभी नहीं कहेंगे कि हमें कुछ प्रॉब्लम है, और वो अपना काम करती रहेंगी. यहाँ पर आपके लिए रहेगा कि आप जैसे वो आपका बहुत ध्यान रखती हैं, ऐसे ही आप अपने मदर का भी ध्यान रखें, ताकि उनको इन सब प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े. देन नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज़ द रूरल अर्बन एंड रिच पुअर डिवाइड. थोड़ा बहुत हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं. हेल्थ केयर सर्विसेज आर सिग्निफिकेंटली बायस्ड इन फेवर ऑफ द रिच and in favor of the urban areas. Despite the fact that about 70% of the population lives in rural areas, but more than 80% of the hospitals are located in urban areas. ज़्यादा population कहाँ रहती है? रूरल एरिया में. लेकिन हॉस्पिटल्स कहाँ हैं? अर्बन एरियाज़ में. ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगा है, पहुँच नहीं पाते हैं. Therefore, the percentage of population having access to proper medical care is जस्ट अबाउट 25%. क्योंकि अर्बन एरिया में रहते ही 20 से 25% हैं, तो उनको ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती हैं और रूरल पीपल को नहीं मिलती. नेक्स्ट, सेकेंडली, while the rich are to spend only 2% of their income on health care, the poor are to spend more than 10% of their income on health care. अब यहाँ पर क्या रीज़न आ रहा है? अगर हम बात करें कोविड-19 की, कोविड-19 में ऐसा कहा जा रहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो ट्रीटमेंट हो रहा है, उसका खर्चा 15 से 20 हज़ार रुपये है, 15 से 20 लाख रुपए आ रहा है. अब एक गरीब आदमी को कोविड हो जाता है, सपोज़ करिए, वो हॉस्पिटल में जाता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर वो ट्रीटमेंट लेता है, तो 15 से 20 लाख रुपए उसके लिए बहुत बड़ा अमाउंट है. इट मे बी पॉसिबल कि या तो वो उसके पास इतने पैसे हैं ही नहीं हैं, अगर हैं भी तो उसको अपनी इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा उस पर खर्च करना पड़ रहा है, या फिर उसको क्या करना पड़ रहा है? उधार लेना पड़ रहा है. मतलब डेट ट्रैप का हिस्सा बनता जा रहा है. दूसरी तरफ अगर हम अमिताभ बच्चन के बारे में बात करें, अमिताभ बच्चन इज़ ऑल्सो अ कोविड पेशेंट, हमने इन दिनों में देखा है. तो नानावती हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है. अब आप सोच के देखिए कि अगर उनको 15 से 20 लाख रुपए देना पड़ रहा है, तो दिस इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम फॉर हिम, क्योंकि ये उनकी इनकम का एक बहुत छोटा प्रपोर्शन है. तो यहाँ से हमने क्या रिजल्ट निकाला? देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन देयर इनकम लेवल. रिच और पुअर के बीच में जो इनकम लेवल है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत बड़ा गैप है. ये भी एक रीज़न है. दूसरा हम ये कह सकते हैं कि जो पुअर पीपल हैं उसमें उनमें मॉर्बिडिटी होती ही बहुत ज़्यादा है, टेंडेंसी टू फॉल इन ज़्यादा होती है, क्योंकि ना तो वो अपनी केयर कर पाते हैं ज़्यादा, ना उनकी डाइट इतनी अच्छी होती है, ना उनका लिविंग स्टाइल हेल्दी होता है. तो उनके सिचुएशन में मॉर्बिडिटी या वल्नरेबिलिटी या रिस्क फॉर बीइंग इल और रिस्क फॉर फॉलिंग इल बढ़ता चला जाता है. सो दिस इज़ अबाउट द रूरल अर्बन एंड रिच पुअर डिवाइड. Move to the next. This is about the global burden of disease. This is GBD. This is very important topic. Global burden of disease is an indicator used by the experts to measure the number of people dying prematurely due to a particular disease. कितने लोग एक बीमारी की वजह से मर जाते हैं. This also includes the number of years spent by them in a state of disability due to various disease. या तो मर गए हैं, या आपको पता है कि जो बड़ी बीमारियां होती हैं या बीमारी होती है तो उनके काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं जो लंबे टाइम तक साथ में रहते हैं. तो GBD उसको भी कवर करेगा. दिस ऑल्सो इंक्लूड्स द नंबर ऑफ ईयर्स
spent by them in a state of disability due to various disease. India bears a frightening 20% of the global burden of disease. More than half of the GBD is accounted by communicable disease such as diarrhea, मलेरिया एंड ट्यूबरकुलोसिस. इसका रीज़न क्या है? इंडिया में पॉपुलेशन ऑलरेडी सेकेंड नंबर पर है. चाइना में मेडिकल फैसिलिटीज़ हमसे बहुत बेटर है, इसलिए वहाँ पर जीबीडी कम है और इंडिया में जीबीडी सबसे ज़्यादा है. अगर हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड का 20% से ज़्यादा जो है जीबीडी का 20% से ज़्यादा इंडिया में है. सो दिस इज़ अबाउट द ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़. सो विद दिस the topic for today is over. You are to complete your topics properly and you can send me your doubts also. Dear students, be sincere, do your work properly. This is very important topic. So enjoy your day. Have a wonderful day. Do your work properly. Goodbye, dear students.